Good morning, students, class 9th. Today, I am going to explain about the effect of addition of impurities on boiling point. In the previous lecture, we have discussed about the effect of addition of impurities on the freezing point or melting point. Then, also, we have explained about the latent heat of vaporization, which is just similar to latent heat of fusion. Now, what is the effect of addition of impurities on boiling point? Suppose we have two liquid, one is pure water and other is some salt is added to water. Now this water is not pure because impurities, that is salt, is added to water. Suppose we have added NaCl to this water, clear? And we know that this pure water has fixed boiling point of 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. This is the boiling point of pure water, 100 degrees Celsius, or in Kelvin scale the value is 373 Kelvin. By addition of this impurity on water, it was observed that the boiling point of this water now increases. The boiling point of water now increases. Why this increase in boiling point is observed? Because addition of impurities, which we have added these impurities like salt. Now this salt will behave like an impurity, so impurities decreases the water molecules. Impurities decreases the water molecules which are available for vaporization during the process of boiling, for vaporization during boiling. That's why here the impurities decreases the boiling water molecules available for vaporization during the process of boiling. Therefore it will causes increase in the boiling point of water. Clear? Next is sublimation. The next topic is sublimation. What do you mean by sublimation? As we have discussed above, that most of the substances around us first of all changes from solid to liquid and then liquid to gas on further absorption of heat. When solid substance undergo absorption of heat, it will changes into liquid. When this liquid undergo absorption of heat, it will changes into gas. It means जो भी हमारे पास respective state of matter है उसको हम heat provide कर रहे हैं. Clear? Now there are some other substances which directly changes into गैस फ्रॉम सॉलिड स्टेट. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको अगर हमने हीट किया है तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होंगे? गैस में. एंड दे कैन आल्सो कन्वर्ट into solid from the gaseous state and vice versa, solid to gas और gas to solid. अगर solid to gas में conversion है it means उसको हमने क्या कर दिया है? हीट किया है. अगर gas to solid में conversion है it means जो भी हमारे पास substance था उसको हमने क्या कर दिया? cool. So on cooling the process can be reversed and on heating the process can be forwarded. This process is called as sublimation. In short, we can define this sublimation as the process which involves direct conversion of solid into gaseous state on heating. The process which involves direct conversion of solid into gas simply on heating and vice versa on cooling. इसका जो opposite process होगा means conversion of gas directly into solid on cooling without passing through the liquid state. सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन है, गैस टू सॉलिड में कन्वर्जन है. तो जो बीच की स्टेज है लिक्विड स्टेज, वो स्टेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो वो स्टेट यहाँ पर बीच में इंक्लूड नहीं होगी. सो सॉलिड टू वेपर्स और वेपर्स टू सॉलिड, दिस प्रोसेस is called as sublimation. It is obtained by heating or cooling of the respective state of matter. Clear? Now for example, those substance which have vapor pressure इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिन सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होते हैं? इक्वल. तो उन सब्सटेंसेस के अंदर यहाँ पर प्रोसेस जो है सब्लिमेशन का वो फास्टली ऑब्जर्व होता है. क्लियर? द सब्सटेंसेस इन विच द वेपर प्रेशर इज़ आलमोस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे अंडरगो सब्लिमेशन वेरी फास्टली. फॉर एग्जांपल ड्राई आइस.
फॉर एग्जांपल ड्राई आइस विच इज़ नेम्ड एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड CO2 अंडरगो सब्लिमेशन एट -78 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन स्केल द वैल्यू इज़ 195 केल्विन। इट मीन्स इतना टेम्परेचर पे सॉलिड CO2 क्या हो जाएगी, सब्लाइम, इट विल चेंजेस इनटू गैस और गैस टू सॉलिड। ठीक है, अगर हमारे पास CO2 गैस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, CO2 सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉलिड टू गैस। जब भी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे इट मीन्स जो प्रोसेस है वहाँ पर कूलिंग है। सॉलिड टू गैस अगर आता है इट मीन्स वहाँ पर हम प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, गिवन सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं। क्लियर। नाउ सम अदर सब्सटेंसेस विच अंडरगो सब्लिमेशन एग्जांपल्स आर अमोनियम क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला NH4Cl, then camphor also undergo sublimation, naphthalene balls. These naphthalene balls are used in the homes to keep the warm clothes safe. जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनके अंदर हम नैपथिन बॉल्स को डालते हैं ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया या जर्म्स जो हैं वो डेवलप ना हो। सो दीज आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज़ एंथ्रासीन। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Anthracene also undergo sublimation, benzoic acid and iodine. These are the some common substances which undergo sublimation process, means they undergo direct conversion of solid into gas or gas into solid. Now next is the application of sublimation, where this technique is applicable or where this technique is used. This technique is useful in purification of solid. First application is it is useful in purification of solid which sublime on heating. जो भी हमारे पास सॉलिड है, सपोज ये सॉलिड है और ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि ये सॉलिड जो सब्सटेंस है इट विल अंडरगो सब्लिमेशन फास्टली। क्लियर। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो कर सकता है तो उस सॉलिड को हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक, बिकॉज दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सम इम्प्योरिटी। सपोज इसके पास क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़, एंड द नेचर ऑफ दीज इम्प्योरिटीज़ आर नॉन वोलेटाइल। क्लियर। एंड द नेचर ऑफ दीज इम्प्योरिटीज़ आर नॉन वोलेटाइल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वोलेटाइल? इट मीन्स the substances or the compounds which do not vaporize easily at room temperature, जो जल्दी से वेपोराइज नहीं होते, which do not vaporize at room temperature, such type of substances are called as non volatile। और ये जो सब्सटेंस है नॉन वोलेटाइल ये हमारे सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में है। तो जो बाकी सब्सटेंस बचेगा सॉलिड, इट मीन्स उसका नेचर कैसा है, वोलेटाइल है, दैट विल ईजीली वेपोराइज एट रूम टेम्परेचर। तो ईजीली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को सेपरेट, क्योंकि जो सॉलिड वेपोराइज होगा और जो हमारा कंटेनर जिसमें भी हम इसको सेपरेट कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ रिमेन्स एट द बॉटम। सपोज हमारे पास है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl। क्लियर। अगर सिंपल NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड तो ये सब्लिमेशन शो करेगा सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। अगर इसके अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, नाउ दिस इम्प्योरिटी इज़ टोटली नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसको सेपरेट करना, दोनों को हमने कम्प्लीटली मिक्स कर दिया। दिस साल्ट इज़ आल्सो वाइट इन कलर एंड दिस इज़ आल्सो वाइट इन कलर। ऑन कंप्लीट मिक्सिंग द कंपोजिशन सीम्स टू बी यूनिफॉर्म। दोनों दिखने में एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, होमोजेनियस मिक्सचर आ चुका हमारे पास। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे? सो द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज़ अगेन नेम्ड एज सब्लिमेशन, बिकॉज आउट ऑफ दीज टू the properties of NH4Cl is that it will sublime easily at low temperature, whereas NaCl does not undergo sublimation, because the melting point of NaCl is approximately 800 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जाने के बाद ये सब्सटेंस क्या होगा, मेल्ट होगा, देन वेपोराइज होगा। लेकिन जो NH4Cl है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी क्या है, लो। तो इजीली हीट करने से सब्सटेंस सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। इन दिस वे वी कैन सेपरेट दीज टू सब्सटेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक इज़ इन कोल्ड प्लेसेस, और कोल्ड कंट्रीज वेयर द स्नो डज नॉट मेल्ट, इन कोल्ड कंट्रीज वेयर स्नो डज नॉट मेल्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्नो है मीन्स जो आइस की एक फॉर्म है, इसको हम डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेंगे,
it will directly converted into vapors by the process of sublimation. क्लियर। तो sublimation से हम क्या कर सकते हैं, जो स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं, जो स्नो कवर्ड ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोड्स बने होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, उसको फ्री करने के लिए हम स्नो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेपर्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. नेक्स्ट इज इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर. In frost free refrigerators, the walls the ice which is present on the walls of the freezer sublime when the warm air is circulated through the compartment during the defrost cycle. ऑटोमेटिक सिस्टम होता है रेफ्रिजरेटर्स में, जो लेटेस्ट टेक्निक है रेफ्रिजरेटर्स, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि जो हमारा जो फ्रीजर होता है, जहाँ पे हम बर्फ़ रखते हैं, आइस फॉर्मेशन के लिए वाटर रखते हैं, तो उस केस में जो कंपार्टमेंट है, जो पुराने फ्रिज होते हैं उसके ऊपर जो उसकी वॉल्स हैं, वहाँ पर जो आइस है, यानी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, आइस बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आजकल लेटेस्ट टेक्निक रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या होता है, देयर इज़ डीफ्रोस्ट साइकिल आल्सो. तो उस केस में क्या होगा, जब डीफ्रोस्टिंग होगा तो यहाँ से जो कंपार्टमेंट है इसमें वार्म एयर, गर्म जो हवा है वो सर्कुलेट होगी. एज ए रिजल्ट दिस आइस विल चेंजेस इनटू गैशियस स्टेट. सो इट इज़ आल्सो द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन. नेक्स्ट है, दिस टेक्निक इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रीज ड्राइड फूड्स. जो भी हमारे फ्रीज ड्राइड फूड्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन को. नेक्स्ट इज़ अफेक्ट ऑफ प्रेशर. व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ प्रेशर? व्हेन pressure is applied on any state of matter, it will show some changes. Suppose if we have solid state of matter, liquid state of matter or gaseous state of matter, it was observed that solid state of matter does not show any change with respect to pressure. जो solid substance है वो compress नहीं होता, therefore it is totally incompressible. It have no effect of pressure. Similarly, liquid also does not undergo compressibility, or we can say that these liquid state of matter is slightly compressible और almost incompressible. लेकिन जो gaseous state of matter है it will shows effect of pressure. जैसे इसके ऊपर हम pressure अप्लाई करेंगे, इसकी जो state है वो क्या हो जाएगी, चेंज होनी स्टार्ट होगी. Therefore we can say that the gases are हाईली compressible in nature. कैसे स्टडी करते हैं इसको? सपोज़ हमारे पास किसी कंटेनर में हमने गैस फिल कर रखी है. इन दिस कंटेनर सपोज़ पार्टिकल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है. इस पिस्टन को अगर हम प्रेस करते हैं यहाँ से, तो इस गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है. और जो ये पिस्टन है दिस इज़ फ्रिक्शनलेस. जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं इस गिवन वॉल्यूम के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, और जो वॉल्यूम हमारा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़. हमने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, बाय increasing pressure or by applying pressure, it was observed that the total height of this column, जो इस कॉलम की हाइट है, प्रेशर अप्लाई करने से वो हाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़. और इस गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़. क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल जो है वो काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दे कम क्लोज़र. इसके ऊपर अगर हम और प्रेशर अप्लाई करें इस पिस्टन पे, if more pressure is applied, then it was observed that, अब हमने फिर से प्रेशर अप्लाई किया है, it was observed that the volume or the area or the height of column further decreases and these particles comes closer, combines together and changes into solid state. ठीक है, गैसेस थी, प्रेशर अप्लाई किया, गैस के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, दे अंडरगो लिक्विफिकेशन, लिक्विफाई होंगे, और प्रेशर अप्लाई किया बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी कम करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं फाइनली वो क्या हो जाएंगे, दे विल सॉलिडिफाई. क्लियर. एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाएंगे हमारे ड्राई आइस, ठीक है, अमोनिया. कौन कौन सी गैसेस को हम गैशियस स्टेट से लिक्विड एंड देन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें एग्जांपल आएंगे गैसेस लाइक अमोनिया. अमोनिया मीन्स NH3. नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज़ SO2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ CO2. दीज गैसेस शोज प्रॉपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज़ एंड टेम्परेचर डिक्रीज़. मीन्स अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर विल शोज द चेंज ऑफ स्टेट इन गैशियस स्टेट ऑफ मैटर.
Clear? And these three states of matter are interconvertible in nature. How these states of matter are interconvertible? Suppose this is the solid state of matter, we want to convert it into liquid state. Then the process used for conversion of solid into liquid, this process is called as fusion or melting. And how it is obtained? When this solid is heated, it will changes into liquid. Fusion or melting बोलेंगे. If we want to convert this liquid state of matter into respective gaseous state, then the process is called as vaporization or boiling. Clear? If we want to convert this gaseous state of matter into solid state, then the process is called as sublimation. The reverse process is also possible. If we want to convert this solid into gas, the process is again named as sublimation. If we want to convert this gas into liquid, the process is called as condensation. And if we want to convert this liquid into solid, the process is generally named as melting. So by applying some changes, the three states of matters can be interconvertible.